हाँ भाई क्या हाल है भैया, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आस्क गंजी स्वैग। एंड एज आई एम स्पीकिंग टू यू, पाकिस्तान में आग लगी हुई है हर जगह। अगेन नथिंग न्यू, ये तो चीज़ें देखते हुए हम बड़े हुए हैं सारी ज़िंदगी। आज दूसरा दिन है, इमरान खान कल अरेस्ट हुए, तो ये जब भी आप एपिसोड देखेंगे ये आज रिकॉर्ड हो रही है। और यूट्यूब भी नहीं चल रहा, इंटरनेट भी आगे पीछे, बाहर जाओ तो नहीं चलता। दिस इज़ द कंट्री वी लिव इन भाई। एक इंसिडेंट होता है और फिर पूरे मुल्क का नेट ही बंद कर देते हैं, लाइक नोबडी वर्क्स। सो ये है, इतना गलेबल है सिस्टम। इट्स अ जोक मैन। अब सही किया गलत किया, आई एम नॉट गोना गेट इनटू दैट, बट द थिंग इज़ कि चीज़ें इस तरह मैनेज होती हैं यहाँ पे कि सबका नेट बंद कर दो, और भाई यही चलता आ रहा है। खैर, ऑलराइट, द स्ट्रगल्स ऑफ सक्सेसफुल वुमेन इन पाकिस्तान। Assalamualaikum Junaid bhai, hope you're doing well. This is the story of my life struggles, but as DJ Khalid फरमाते हैं, struggling from success. Alhamdulillah. I'm 27 and quite successful, I'd say. I work at a very good corporate position and make about 500,000 salary. MashaAllah. I'm sure you can see this is coming. I'm sure you can see this coming, but I'm struggling to get married since the past 3 years, since my salary was 350-ish. I've gone through so many Khandani interviews and judgmental meetings, and no one seems to like me, and it's all related to me being successful. I understand guys get insecure because deen or dunya mein guys are supposed to provide for their family. I also understand that me being a pretty woman, not to sound overconfident, it's much easier to become successful rather than an average man. It's a sad state of our country, but it's true and out of my hands. I've had so many potential rishtas, and I've even said it's okay if you earn less because we can share our expenses and work together, but no one seems to understand this. The only legit interest I have gotten is from one of my bosses, very fucking typical and faced by many working women. He's average, but I don't really find him attractive, and he smokes, which is he's really my last choice, and I don't want it. But if that's the way things will be, I won't have an option. I feel like I'm helpless and no other option is in front of me. The one guy I liked in university was rejected by my family because they know better and blah blah. I'm over it because I can't do anything about it. Going against my family would have been like suicide. He's living happily after he waited for me for quite some time. Even after being independent, I still can't choose my own spouse. I really want to get you're financially independent, not independent. I really want to get married because I don't want to fall into zina. Another stupid misconception in our society is that girls don't have any sexual tensions or needs. It's such a struggle for me seeing all happy couples everywhere, and I wish the same for me. But I think now the only way for me to get that is to leave my job and ghar basana. I don't even have a problem with that. I would do it when I have kids, when they need more attention. It's just the initial judging which feels terrible and horrible. At this point, even my parents have given up. They say तुम जैसी लड़कियां जो पैसे के पीछे भागती हैं वो कभी घर नहीं बसा सकती. I have girl cousins and neighbors who are younger than me and have kids. My 19-year-old cousin is a mom of 3. What? 19-year-old cousin? नहीं, कुछ और होगा. शी इज़ मैरिड टू अ 30-year-old. ये हालात हैं हमारे घर पे. दे ऑलवेज हेयर फ्रॉम देयर फैमिली मेम्बर्स के देखो वो बेटी को पढ़ाओगे तो यही होगा. बेचारों को अपने ग्रैंड किड्स भी देखने को नहीं मिलेंगे अपनी ज़िंदगी में. आई वुड रियली अप्रिशिएट some advice from you. Thank you for reading. Well, it's not something out of the box. Successful लड़कियां या ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़कियां are looked down upon because again insecure people. And my friend was just telling me this, and it's just not South Asia. In fact, he had a Malaysian friend who was at a very high corporate level, and she had to leave that job, go back to Malaysia, and वो regional director थी in some company, and she had to choose a very small job just so that she can be marriageable. So अब ये तो मसला है. रही बात जो आपने कहा कि मैं बाद में छोड़ दूंगी, again, when I don't know how that works, but आपको जब आदत हो जाती ना being financially independent, फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है कि किसी से बाद में एक्सपेक्ट करना कि वो आपको पॉकेट मनी दे, आपको पैसे दे. तो मे बी यू लीव दैट जब बच्चे छोटे होंगे, पोस्ट नेटल पीरियड वगैरह. मगर ये कि
बिल्कुल छोड़ देंगी आप, ये अगेन इट्स अ रिलेटिव सब्जेक्ट, बट व्हाट आई थिंक इज़ कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आपकी एक आदत बनी हुई हो एंड देन लाइक आप सब छोड़ छाड़ के घर पे बैठ जाएं। अगेन वो आपकी अपनी चॉइसेस हैं, दैट्स फाइन। और आपने जो कहा कि मैं छोड़ने को भी तैयार हूँ जस्ट सो दैट शादी कर लूँ, तो डोंट किल योर सेल्फ फॉर दिस। आई अंडरस्टैंड, वो आपकी अपनी बातें बिल्कुल ठीक हैं, सेक्सुअल टेंशन एंड दिस एंड दैट वो बिल्कुल अपनी जगह सही हैं, लेकिन अपना करियर को किसी के लिए गिव अप ना करें, बिकॉज वो चीज़ें तो फुलफ़िल हो जाएंगी। what are you gonna do once like 3 months down the line or 6 months down the line, then what? क्योंकि फिर वो एक चीज़ रेगुलर मोड में आ जाएगी, राइट? तो उसके लिए अपना करियर को गिव अप ना करें। दूसरा, आपने जो बोला कि आपके बॉस आपकी आखिरी चॉइस हैं, तो वो मैं आपसे यही कहूँगा कि इफ़ यू आर नॉट अट्रैक्टेड टू दैट पर्सन, और आपने कहा वो सिगरेट भी पीते हैं एंड यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दैट, तो अगेन अपनी 19 साल की कज़न की वजह से या अपने पेरेंट्स की बातों की वजह से आप ऐसा डिसीजन ना लें जहाँ पे you know for sure that you're going to be unhappy. Why would you purposely choose an unhappy life just so that you can make other people happy? I mean, I don't understand. अपनी ज़िंदगी अपने हाथ में रखें भाई, छोड़ें इसको कि ख़ानदान वाले क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं। वो दूसरे टाइम के लिए पैदा हुए थे, वो कुछ लोग, some people in our country and in our society choose to live in 7th century, उनको आप वहीं रहने दें। लोग ग्रैंड किड्स देखे बगैर मर जाते हैं, कोई बात नहीं। बहुत से लोग अपनी औलाद देखे बगैर भी मर जाते हैं, लाइक फादर्स। तो इसमें ऐसी कौन सी बात हो गई? आपके नसीब में भाई हर चीज़ अल्लाह की मर्ज़ी से होती है ना, तो अगर आपके नसीब में और अल्लाह ने लिखा था आपकी किस्मत में, तो आपको मिल जाएगा। अगेन, क्या आप अल्लाह के फैसलों को इस तरह झुटलाएंगे? नहीं कर सकते ना, हर चीज़ अपने टाइम पे होगी। तो प्लीज़ किसी और की बातों की वजह से अपनी ज़िंदगी को ना दांव पे लगाएं। बिल्कुल करें, शादी अच्छी चीज़ है, एंड इफ़ यू फील लाइक यू शुड फाइंड समवन, व्हाई नॉट, मगर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर एंटायर करियर कि मैं सब छोड़ छाड़ के घर बैठ जाऊंगी बस मुझे कोई अपना ले। दैट्स नॉट द वे टू लिव। फिर वो अगला आपको फिर एक्सप्लॉइट ही करता फिरेगा ज़िंदगी भर। तो अपनी बारगेनिंग चिप्स अपने हाथ में रखें, अपने कार्ड्स अपने सीने से लगा के रखें। दैट्स ऑल आई कैन से। थैंक यू, गुड लक। ऑलराइट जी, नेक्स्ट ईमेल सेज आई डोंट वांट माय चाइल्ड टू लिव इन पाकिस्तान। हाय जुनेद भाई, प्लीज़ हाइड माई आइडेंटिटी। आई एम ABC फ्रॉम कराची 28। प्रॉब्लम कुछ ऐसा है कि मैं एक ग्राफिक्स / UX डिज़ाइनर हूँ जो एक बहुत मुनासिब सी जॉब कर रहा हूँ। माई पेरेंट्स डाइड इन माई चाइल्डहुड, आई एम सॉरी टू हियर, एंड और मैं बहुत मुश्किल से पला हूँ अपनी दादी के घर पे। दादी को एपिलेप्सी था और घर में वो गिर जाती थी तो मुझे घर का गेट वगैरह तोड़ना पड़ता था, तो काफ़ी बार ऐसा हुआ। इस वजह से बड़ों ने घर के डिसाइड किया कि मेरी शादी कर दी जाए ताकि पीछे कोई दादी का केयर टेकर हो, बेसिकली बग़ैर पे वाली नर्स। तो आई गॉट मैरिड इन 2013 मैट्रिक, और फिर शादी के बाद वाह घर की जिम्मेदारियां उठानी थी तो मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी उस वक्त, और सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ा सका। आई डिड मैट्रिक इन 2010, लेकिन अल्लाह ने ज़िंदगी में सही फैसला करवा दिया और बहुत छोटी छोटी जॉब्स कर के आज से 4 साल पहले मुझे एक प्रॉपर पाथ मिल गया इन IT फील्ड विच वाज डिज़ाइनिंग। मैट्रिक के बाद से ही कंप्यूटर से मेरा थोड़ा इंटरेस्ट रहा और कुछ ना कुछ करना चाहता था, लेकिन पढ़ाई ना होने की वजह से छोटी जॉब्स वगैरह करके घर चलाना पड़ रहा था। अब मैं थोड़ा मुनासिब अर्न कर लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, एंड ट्राइंग टू स्टार्ट माई ओन डिज़ाइनिंग एजेंसी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। अल्लाह ने मुझे एक बेटी दी है आज से 10 मंथ्स पहले। आफ्टर 8 years एंड माई वे ऑफ लुकिंग इन टू लाइफ, अच्छा शादी के 8 साल बाद, लुकिंग इन टू लाइफ हैज़ बिन ड्रास्टिकली चेंज आफ्टर माई बेबी। मुझे लगता है कि पाकिस्तान में इसका क्या बनेगा, और जब भी कोई ऐसी वैसी न्यूज़ सुनता हूँ तो दिल घबरा जाता है। मैंने काफ़ी रिसर्च की और मुझे कोई ऐसे वीज़ा दिखे किसी कंट्री का जहाँ मैं माइग्रेट कर सकूँ, लेकिन एवरी कंट्री नीड्स डिग्री। पार्टनर में मुझे कोई इशू नहीं है, आगे मैं चाहता हूँ, बट आई थिंक इंटर की फ़ाइनल एज लिमिट 23 है। अच्छा, आगे मैं पढ़ना चाहता हूँ पर इंटर की फाइनल लिमिट 23 है और मैं वो खो चुका हूँ। अब समझ नहीं आ रहा कि कैसे ख़ुद को समझाऊँ कि बाहर जाने का ख्वाब छोड़ दो और यहीं रहो,
और बच्चों को भी यहीं बड़ा करो। अगर आप इसमें कुछ हेल्प कर सकते हैं तो इफ़ यू हैव सीन एनी केस जहां डिग्री और पढ़ाई ना करके भी कोई बाहर माइग्रेट हुआ हो सिर्फ स्किल्स बेस पे, आप गाइड करें कि मेरा क्या अब से रूट हो तो मैं 5-6 साल में माइग्रेट कर सकता हूँ कहीं और। दिल घबराता है जब मैं अकेला था, मसला नहीं होता था, वाइफ और मैं खुश थे, लेकिन बेबी के बाद से हम सोचते हैं कि यहाँ नहीं रह सकते, बच्ची को रख सकते बच्ची को अपनी, स्पेशली अ गर्ल इन दिस टॉक्सिक सोसाइटी, नेवर। माई वाइफ हैज़ डन इंटर, लेकिन उसका भी पेपर रुक गया था तो उसने नहीं दिया एंड गैप आ गया है 3 साल का। इफ़ यू कैन गिव एनी सोल्यूशन और प्लीज़ मोटिवेट टू गाइड अस, क्या किया जाए, थैंक्स अ लॉट। सो ये साहब हैं, इन्होंने मैट्रिक के बाद शादी कर ली थी और डिज़ाइनर हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, अपनी एजेंसी खोलना चाह रहे हैं, विच इज़ गुड। जब से बच्ची हुई है उनको बस ये हो रहा है कि यहाँ नहीं रहना। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी बच्ची को अपना कर्ज ना बनाइए और उसको लेके, ठीक है, एक परेशानी एक हद तक की ज़रूरी है, लेकिन हर वक्त घबराहट में रहना भी अच्छी बात नहीं। बात आपकी बिल्कुल सही है, सेफ़ एनवायरनमेंट तो नहीं है बच्चों के लिए और बड़ा देख देख के चलना पड़ता है और रखना पड़ता है, तो आपकी परेशानी मैं समझ सकता हूँ एज अ फादर। दूसरी बात ये कि आपने कहा कि भाई मेरी इंटर हो नहीं सकता और ख़ाली स्किल की बेस पे किसी की माइग्रेशन हुई है, तो जो लोग सुन रहे हैं जिनकी हुई है, अगर वो किसी को जानते हैं तो आप समरी कमेंट में लिख सकते हैं। मुझे जो एक तरीका समझ आता है वो ये है कि भाई फिर एक तरीका होता है पैसे की वजह से, आपके पास इतना पैसा हो दिखाने को कि आप बाहर जाके कोई प्रॉपर्टी ले लें, जैसे अक्सर टर्की वगैरह का आ रहा होता है कि वहाँ पे लोग प्रॉपर्टी लेके नेशनैलिटी ले लेते हैं। मुझे इसका ज़्यादा पता नहीं है तो मैं रेकमेंड कुछ नहीं कर रहा, आप अपनी वर्किंग को खुद कीजिए। तो पैसा ही एक वाहिद ज़रिया होता है जिसके ज़रिए आप जा सकते हैं बाहर, कि आपकी एजेंसी माशाल्लाह इतनी बड़ी हो जाए कि आपके अकाउंट में इतने पैसे होंगे फिर आप कहीं का वीज़ा ख़रीद सकें या कहीं जाके बिज़नेस स्टैब्लिश कर सकें या अपना बिज़नेस किसी और कंट्री मूव करें। तो इन्वेस्टमेंट्स को यस किया जाता है और बहुत सारे मुल्क हैं, मगर वो इन्वेस्टमेंट का पूल थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा सा, वरना तो हर कोई यहाँ से चला जाए, समझ रहे हैं आप। तो यही एक वाहिद तरीका है जिसमें आपको मतलब यू हैव टू बाय योर वे आउट, यानी पैसे से ख़रीद के टिकट लेके जाना पड़ेगा, वैसे नहीं हो सकता मेरी नज़र में। लेकिन अगर जो लोग आजकल तो स्किल वीज़ास पे काफ़ी बातचीत भी चल रही है और अक्सर ऐड भी नज़र आते हैं यूट्यूब वगैरह पे कि जी एम्स्टर्डम में नौकरियां, अगर आपके पास ये स्किल्स हैं, फ़लाना ढिमकाना, ऑस्ट्रेलिया में ये ओपनिंग्स हैं, अगर आपके पास ये स्किल्स हैं तो उस पर देख लीजिए। वैसे जिस फील्ड में आप हैं ग्राफिक डिज़ाइनर, ये तो काफ़ी सैचुरेटेड है, तो इतनी यूनिक इंडस्ट्री नहीं है कि जहाँ के लिए लोग चाहिए ही चाहिए, तो वो हर हाल में लोग होते ना, जैसे नर्सेस होंगे या पैलिएटिव केयर के लोग हो गए, वो चाहिए ही चाहिए होता है, ख़ास तौर पे वेस्ट में, तो उनको हाथों हाथ ले लिया जाता है। तो ये उस तरह की फील्ड तो खैर नहीं है। हाउएवर रास्ते हमेशा रहते हैं कोई ना कोई। अब मैं ये तो आपको कभी मशवरा नहीं दूंगा जाली डिग्री बनवा लो बोर्ड ऑफिस से जाके, वो चीज़ें पकड़ी जाती हैं और HEC में चीज़ें पकड़ी जाती हैं, तो ये इस रूट पे मत जाना। अगर कोई मशवरा भी दे कि भाई ये इतने लाख दे दौर में ये बनवा दूंगा या बैक डेट की डिग्री निकलवा दूंगा, ये काम मत करना, गलत भी काम है और दूसरा ये कि वो पकड़ा जाता है, तो ना करना ऐसा, इस रूट पे मत जाना। मुनासिब तरीके से कोशिश करो, अपनी रिसर्च भी करें और जो लोग सुन रहे हैं वो ज़रा गाइड भी कर दें तो अच्छा हो जाएगा। थैंक यू। और जी नेक्स्ट वन, कतार की इखलाकियात, एथिक्स ऑफ क्यूइंग। अस्सलाम वालेकुम जुनैद, नाम ना डिस्क्लोज़ कीजिएगा, कराची से बात कर रहा हूँ। उम्मीद है आप पाकिस्तान के हालात से मायूस होने के अलावा ज़ाती मामलात में ज़िंदगी में पुरसकून होंगे। भाई यहाँ कौन हो सकता है, अल्लाह आपको मज़ीद तरक्की दे, आमीन। ATMs, बिल, तंदूर वगैरह पे कतार क्यू लाइन में जैसे कि तकरीबन रोज़ ही मुशाहिदे में आता है कि ना कोई ख़ातून बीच कतार में आ जाती हैं और उनको जगह दे दी जाती है, हालांकि मुख्तलिफ़ मौक़ों पे मुख्तलिफ़ हालात होते हैं। कभी कोई ख़ातून या लड़की अकेली होती हैं, कभी किसी मर्द के साथ होती हैं, लेकिन मामलात डीलिंग में ख़ातून को आगे किया जाता है, हाँ, लाइन तोड़वाने के लिए। कुछ ख़वातीन माशाल्लाह से ख़ुद ही अपनी बारी
का बड़े तहम्मुल से इंतज़ार भी करती हैं। ठीक है, और भी मुख्तलिफ हालात होते हैं। अगर ये सवाल अपनी वीडियो में शामिल किया, लोग ज़रूर शेयर करेंगे। कहने को एक मामूल और छोटी सी बात के हवाले से कि ऐसा अक्सर लोगों को कहते देखा है कि जब बहस होती है तो इस बारे में कि अपनी राय लेनी है, साथ ही ये भी बताइएगा कि आपने मुख्तलिफ ममालिक में इस हवाले से क्या इक़दाम देखे हैं और क्या उसूल और अखलाकियात होते हैं, स्पेशली मुस्लिम कंट्रीज़ में। उम्मीद है कि ये मसला आपको मामूली नौयत का ना लगे, क्योंकि मेरे नज़दीक इन छोटी छोटी बातों से ही मुआशरे की अखलाकियात का अंदाज़ा होता है। आपके जवाब का मुंतज़र। सॉरी फॉर नॉट कंपोजिंग दी ईमेल इन इंग्लिश, आई कुड हैव रिटन इट इन ईजी वे, बट आपको तंग करने का सोचा। ठीक है, मुझे उर्दू बिल्कुल पढ़ने आती है। ये जो उर्दू वाली में मैं अटकता हूँ ना, उसकी वजह ये है कि कुछ लोग पूरे वर्ड नहीं लिखते। जैसे कुछ लोग टेक्स्ट करते हैं ना, क्या कर रहा, क्या कर रहे हैं, नहीं लिखते क्या कर रहा, इस तरह करके। तो ये उसी तरह की स्पेलिंग्स में आई है, तो इसलिए मुझे, और पिछली वाली भी ऐसी थी, तो इसलिए पढ़ने में मुश्किल होती है। वरना उर्दू भाई मेरी बहुत अच्छी है, उर्दू हो या रोमन हो। खैर, सवाल आपका क्या था मुझे तो समझ ही नहीं आया। बिल्कुल दूसरे ममालिक में क्यूइंग की सिखाई जाती है। देखें यार, उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि क्यूइंग हमें भी सिखाई जाती है स्कूल में, मगर वो डर से सिखाई जाती है। देखें, तालीम हमारे यहाँ भी दी जाती है, मोर और लेस हर आगे पीछे भी यही तालीम है, लेकिन हमारा जो वो है ना, हम प्यार से कुछ भी नहीं सिखाते, हम हर चीज़ डर से सिखाते हैं। हम खुदा से भी जो है ना डर सिखाते हैं, मोहब्बत नहीं सिखाते। इसी तरह टीचर, हेड मास्टर, हम ये एक डर की अलामत होते हैं। वैसे तो कहते हैं रूहानी वालदेन है, लेकिन वो ऐसा वालदेन है जिससे हर वक्त डर ही लगा रहे, तो वो क्या ही वालदेन होगा, राइट। तो जिस तरह लोग घरों में जहाँ सख्त पेरेंट्स होते हैं, वो बच्चे बहुत बिगड़ जाते हैं। उसकी वजह ये है कि एक तो वो उनका वो डर ख़त्म हो जाता है, दूसरा वो आदी हो चुके होते हैं, और तीसरा ये कि जब पावर डायनामिक चेंज होती है ना, फिर वो हाथ ही नहीं आते, राइट। तो वो बस बड़े होने का वेट कर रहे होते हैं या कमाने का वेट कर रहे होते हैं, फिर वो भी उसी तरह लताड़ते हैं अपने पेरेंट्स को। तो हमारे यहाँ अक्सर और बेशतर जो तरबियत है, चाहे वो स्कूल में हो या चाहे वो घर में हो, वो डर के एंगल से होती है, वो मोहब्बत के एंगल से नहीं होती। तो वो डर फिर तभी तक कारआमद रहता है जब तक पावर डायनामिक्स में आप नीचे हैं। जहाँ आपको मौका मिलता है, आप पावर मिलती है, आप फिर वो डर से निकल जाते हैं। तो फिर पता चलता है, तो इस वक्त तक जो आप फॉलो कर रहे थे, वो अतात जो थी वो डर में थी, वो मोहब्बत में नहीं थी, अंडरस्टैंडिंग में नहीं थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम स्कूल की असेंबली में 10 साल से लाइन में लगे होते हैं सुबह, शोल्डर लेंथ डिस्टेंस दे के 10 साल एवरी डे लाइन में खड़े होते हैं। फिर क्या वजह है, यही लोग स्कूल से बाहर जब निकलते हैं लाइन तोड़ देते हैं। तो उन्होंने उस 10 साल में क्या सीखा? उनको ये पता था यार, अगर लाइन टेढ़ी होगी ना, टीचर का डंडा आएगा। उन्होंने ये नहीं सीखा कि लाइन बनानी क्यों है या डिसिप्लिन ज़िंदगी में ज़रूरी क्यों है। उनको ये नहीं सिखाया कि इससे आपकी ज़िंदगी में फ़र्क क्या पड़ेगा और आप एक निखरे हुए इंसान बनेंगे। बस ये था कि जी सर ने बोला सीधा तो सीधा होना है, क्वेश्चन नहीं होता ना। तो जब बच्चे क्वेश्चन करेंगे कि भाई हमें लाइन में क्यों खड़ा किया जाता है, और जब टीचर बोलेगा कि आइए मैं आपको बताता हूँ, तो फिर बच्चे के जहन में भी बात आएगी। जब बच्चे ने कोई सवाल भी नहीं करने देना और डंडे के ज़ोर पे लाइन में खड़ा करना है, तो वो लाइन में मैट्रिक तक खड़ा रहेगा, लेकिन जिस दिन मैट्रिक के वो पेपर देगा, वो उसी स्कूल के पंखे टेढ़े कर देता है, और टीचरों को अक्सर लोग मारते भी हैं। ऐसा ही है भाई मुइज़, टीचर पिटते भी हैं, क्योंकि अब टीचर की पावर उस पर अप्लाई नहीं होती। गेट इट? तो ये वजह है। मैं जब फर्स्ट ईयर में था, तो अक्सर लड़के बीच लेक्चर में उठ के बाहर चले आते थे। तो हमारे केमिस्ट्री के एक टीचर होते थे, आई थिंक उनका नाम करार काज़मी था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। केमिस्ट्री के थे या मैथमेटिक्स के थे? केमिस्ट्री के थे, ओके। तो उन्होंने बहुत अच्छी मिसाल दी। उन्होंने बोला कि आप लोग फर्स्ट ईयर में हो, 11th ग्रेड में हो, आपने कभी इस बारे में सोचा कि पिछले साल तक जब आप मैट्रिक में थे, आपको वॉशरूम जाने के लिए भी पूछना पड़ता था। यहाँ आप बैग उठा के क्लास से निकल जाते, कोई आपसे पूछता नहीं है। वाई डू यू थिंक दैट इज़? क्या हम आपसे डरते हैं? क्या आप लंबे हो गए तो आप हमें मारोगे? कि नहीं, दैट्स नॉट द केस। द केस इज़ कि वी अंडरस्टैंड एज कॉलेज प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स, और कॉलेज भी ये बात एक्नॉलेज करता है, और वो चाहता है कि आपके अंदर ये बात इंस्टिल हो
कि अब आप बड़े हो गए हो, आप 16 साल के हो, 17 साल के हो, अब आपके लिए क्या सही है क्या गलत ये आप इस काबिल हो गए हो फैसला करने के लिए। तो अब हम ज़िंदगी भर आपको चाहें तो हम डंडे के ज़ोर पे आपको बिठा सकते हो और आप बैठोगे, मगर फिर आप ज़िंदगी भर स्पून फीडिंग के आदी हो जाओगे, फिर आप ज़िंदगी भर एक डंडा ही ढूंढोगे, हाँ भाई अब क्या करना है। तो हम चूंकि आपको एक इंडिपेंडेंट इंसान बनाना चाहते हैं, तो आपके हाथ में हमने ये पावर शिफ्ट कर दी है। अब आप डिसाइड करो कि आपने क्लास में बैठ के सीखना है, समझना है, पढ़ना है, या बस बाहर निकल जाना है, राइट। तो ये बात मुझे आज तक उनकी याद है। तो अगेन वही वाली बात, पावर डायनामिक्स वाली। तो जब तक आप उसको उनको डर में रखते हो तो डर में वो सहम के खड़े हो जाते हैं, वो पूछते भी नहीं हम यहाँ खड़े क्यों हैं, असेंबली में शोल्डर लेंथ ज़रूरी क्यों है। वही शोल्डर लेंथ फिर जब आप एयरपोर्ट पे जाओ, जब तक पीछे वाले की ट्रॉली का पहिया आपके पैर पे ना लगे उसको मज़ा ही नहीं आता, और मारते रहते हैं मारते रहते हैं मारते रहते हैं। क्या जल्दी है, जहाज़ चला जाएगा, अरे मैं भी उसी जहाज़ में जा रहा हूँ जिसमें तू जा रहा है, तो जब वो मेरा सामान ले रहा है तेरा भी लेगा, तू भी नहीं, तुझे वापस घर नहीं भेजेंगे, लेकिन नहीं जल्दी है। तो ये जो आपने बात की एटीएम के बाहर क्यूइंग हो गई, बिल भरवाने की लाइन हो गई, अब तो चले वहाँ बैंक्स में एटलीस्ट अब टोकन सिस्टम में तो लोग बैठ जाते हैं, वरना क्यूइंग नहीं होती। ऐसे नहीं होती सिंगल फाइल, ऐसे होती है इंडिया और पाकिस्तान में। एक इस साइड से आ रहा है, एक इस साइड से आ रहा है, और फिर वो क्यू यूँ हो जाती है, और फिर एक हाथ होता है और वही आ रहा होता है, भाई मेरा ले ले मेरा ले ले। तंदूर पे भी यही होता है। फ़र्क कोई ज़्यादा नहीं है दूसरे मुल्कों में, और ख़ास तौर पे मुसलमान मुल्क हो गए, वहाँ कोई एलियन नहीं रहते, बस ये कि तरीक़ाकार समझाने का और पढ़ाने का और तालीम का अलग है, हमारे यहाँ थोड़ा सा अलग है। हमारे यहाँ टीचर सबसे बड़ा विलन होता है, जबकि उसका तो सबसे शफीक होना चाहिए, शफ़क़त वाला हाथ होना चाहिए टीचर का, लेकिन शफ़क़त का हाथ कहीं और हो जाता है बच्चों के साथ अक्सर। ये बड़ा मसला है। तो यही वजह है हम नहीं सीख पाते ये चीज़ें, और फिर हम अपनी सराउंडिंग्स को देखते भी नहीं हैं। और इसका एक बहुत बड़ा हमारी कुंद जहन एक लफ्ज़ होता है ना, देखो बचपन में सही खुराक नहीं मिली, अब वही वाली बात है, वक्फे से बच्चा इसलिए होता ना कि ताकि माँ भी सेहतमंद हो, तो माँ उसको सही प्रोवाइड कर सके बच्चे को। यहाँ हर साल का मॉडल होता है घर में, माँ का दूध बनता नहीं है सही से, बच्चे को नशोनुमा मिलती नहीं है, तो वो जहन ही नहीं बन पाता। ख़ुद इमरान खान ने अपनी पहली स्पीच में क्या कहा था, स्टंटेड ग्रोथ। तो स्टंटेड ग्रोथ वाले लोग घूम रहे हैं, और वो फिर कुन जहन होते हैं, वो दे कांट पुट 2 and 2 टुगेदर। फॉर एग्जांपल, मैं अक्सर ट्रैफिक में भी देख रहा होता हूँ कि जब आप देख रहे हो कि सामने से गाड़ी आ रही है और यहाँ बीच में एक KMC का ट्रक कचरा कलेक्ट कर रहा है दोपहर को 3 बजे, जो काम उसको सुबह 6 बजे करना है दोपहर 3 बजे कर रहा है, राइट। सो आई नो कि अगर मैंने गाड़ी आगे ले गया ना, ट्रक तो अपना काम कर रहा है, वो भी फंसेगा मैं भी फंसूंगा, तो मेरे लिए बेहतर ये है कि मैं इधर ही रुक जाऊँ, आई लेट दैट कार पास, और जब वो पास हो जाएगी और अगर उसके पीछे कोई और है उनको भी जाने दो, जब तक वो खाली नहीं होगा मैं नहीं निकलूँगा, वरना हम सारे फंस जाएंगे। और ये तरीका ये आपको आता है टेट्रिस से। टेट्रिस अगर आपने खेला हो ज़िंदगी में, या आपने दूसरे, यार वो क्या होते हैं बच्चे, बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होते हैं, लेगो को अगर आपने खेला हो तो आप सीख सकते हो, समझ सकते हो इन चीज़ों को, मगर वही वाली बात है, लोग अकल नहीं लगाते और बीच में आके फिर जाम कर देते हैं। सो ये वही लोग होते हैं। अक्सर एयरपोर्ट पे भी मैं देखता हूँ, अब अगेन यार वहाँ बेचारे ज़्यादातर लेबर क्लास होती है, अक्सर फ़्लाइट या तो वाया दुबई होती है, वाया दोहा होती है, उसमें आपका 60% 70% आवाम जो है वो मज़दूर होते हैं। दे डोंट नो एनी बेटर, वो कभी स्कूल ही नहीं गए, अगर गए भी हैं तो टाट पे बैठ के पढ़ा, और क्या ही पढ़ा। तो वहाँ नीचे इमिग्रेशन वाली लाइन पे अक्सर वो रेड कलर की टेप होती है कि वेट हेयर वाली ना, मगर लोग फिर भी काउंटर तक घुसे होते हैं। वो तो चलो इमिग्रेशन वाले FIA वाले वर्दी में होते हैं, तो एक थोड़ा सा एहसास आता है यार ये वर्दी वाला ये चमाट ही ना मार दे, तो वो ज़रा अगर शश करता है तो बंदे पीछे हो जाते हैं, वरना उनको रेड टेप नज़र ही नहीं आ रही होती। तो अगेन जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ, हमें लोगों को भाई रोड पे चलना ही नहीं सिखाया आज तक, और तरबियत करती हैं यार रियासतें जो होती हैं, स्टेट जो होती है, वो आवाम की तरबियत करती है कि भाई ऐसे चलना है, ऐसे पार्क करने है, ऐसे। अभी क्या है, आपके भी गली मोहल्ले में या आपके ख़ानदान में कोई ना कोई एक ऐसी फैमिली होगी जिन्होंने बच्चे पूरे पैदा किए हुए 8-10, तरबियत कोई नहीं की हुई। अब कोई मवाली बना हुआ है, कोई क्या है, कोई क्या है, कोई क्या है। तो हम जो हैं इन अ ग्रैंडर स्कीम ऑफ थिंग्स मवाली हैं, सारे पैदा किए जा रहे हैं, कुछ पता नहीं क्या करना है, आगे कहाँ जाना है,
अच्छा जी इधर हंगामा है, चलो जिसकी गाड़ी चला दो उसकी। अगेन जिसके पास गाड़ी होती है ना अपनी हक हलाल की, कभी किसी की गाड़ी को आग नहीं लगाता। अभी हमारी एक दोस्त है, उन्होंने बहुत अच्छा स्टेटस लगाया हुआ था कि भाई जिसके पास, जो फ्रीलांसर है ना, जिसके पास ऑर्डर पेंडिंग में लगे हुए हैं और वो एसी वाले कमरे में बैठा है, वो बाहर जाके जो है ना मेट्रो को आग नहीं लगाएगा। वो घर में अपना काम फुलफिल कर रहा है, जैसे हम यहाँ बैठे हैं, जैसे मेरी टीम यहाँ पे बैठी है, काम कर रहे हैं। तो काम वाले आदमी के पास भाई इन चीज़ों का टाइम ही नहीं है। अब आप बोलोगे नहीं जी हक के लिए और इसके लिए और इसके लिए, ठीक है भाई, तो बात कहाँ से कहाँ निकल जाएगी। तो तरबियत हमारी कोई हुई नहीं है किसी किस्म की, और उसके बाद अच्छा ये तरबियत हुई नहीं है। दूसरा इंस्टॉलेशन पूरी हुई है कि हम सबसे बेहतरीन है, अल्लाह माफ़ करे यार। इनको अगर जिस दिन खटमंडू देख लिया ना यार, अब तो इंटरनेट है, अब तो आपके पास कोई जवाब भी नहीं है कि यार हमने वी हैवंट सीन एनी बेटर। जाओ यूट्यूब पे लिखो खटमंडू 4K, सड़क की सफाई देख लो, कोलंबिया के सड़कों की सफाई देख लो, जहाँ पे यार नार्कोस जो हमने सबने देखी ना, नार्कोस में पाब्लो ने बुरा हाल किया था। मेडीन की सड़कें देखें, मेडीन की आप रातें देखें, शर्म से आपका सर नीचे हो जाएगा कि रोशनियों का शहर हम इसको कहते हैं। जहाँ पे पूरा, एक सेकंड में आपको एक रूट समझाता हूँ। आप फोरम के सामने से गाड़ी चलाएं, ठीक है, अब तो चलो यहाँ स्ट्रीट लाइट लग गई, बट फॉर द ग्रेटर पार्ट ऑफ माई लाइफ यहाँ स्ट्रीट लाइट जलती नहीं थी। फोरम से आप सीधा जाएं केमाड़ी तक, केमाड़ी से आप राइट हो जाएं, लियारी क्रॉस करें ऑल द वे टू शेरशाह का ब्रिज, वहाँ से आप राइट हो जाएं, साइट एरिया पूरा नाज़माबाद ऑल द वे टू शाहराह फैसल। ये में बहुत बड़ा रूट है, एक स्ट्रीट लाइट नहीं जलती सिवाय एक छोटे से पैच के जो कि लियारी स्टेडियम के पास आता है, दैट्स इट। वो भी कभी कभी चलती है। ये जो मेरे कैमरामैन पीछे बता रहे हैं, ये वहीं रहते हैं। और इस रूट से मैं खुद अपने दोस्त को कई साल से छोड़ने जा रहा हूँ, यही रूट लेके, एक स्ट्रीट लाइट नहीं जलती यहाँ पे, और ये रोशनियों का शहर है। खैर, तो बात कहाँ से कहाँ निकल गई भाई, अब इसमें क्या ही बोलें भाई। तो हमारे यहाँ तरबियत किसी किस्म की नहीं है। हम, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, मज़हबी लोग हैं, इस्लामी लोग तो हैं नहीं, वरना इस्लाम में तो हर चीज़ सिखाई है। और मैं कितनी बार बोला है कि नमाज से अच्छी कोई एक्सरसाइज नहीं है जो कि आपको दीन के साथ साथ दुनिया की हर अक्सर व बेशतर चीज़ सिखा रही थी। डिसिप्लिन के मामले में वक्त की पाबंदी, सफाई सुथराई, एक सफ़ में खड़ा होना, ठीक है, और ज़ोहर और असर में किरत का ना होना, क्योंकि वो बिज़नेस आवर्स होते हैं, लोगों का दिमाग बिज़नेस में जाता है, तो वो किरत आप खुद करते हो। अबे भाई इतनी डिटेल में कौन सा मज़हब होगा भाई। खैर मेरी इतनी स्टडी नहीं है, लेकिन बतौर मैन ऑफ फेथ मेरी नज़र में यार इससे अच्छी वो प्रैक्टिस जो कि आपकी ज़िंदगी के लिए भी, आपकी अमली ज़िंदगी के लिए भी इतनी बेहतरीन है, लोग उससे कुछ सीखते ही नहीं है, राइट। खैर, तो भाई ये तो बड़ी लंबी डिबेट है, क्या ही बात करें। तो कुन जहन वाले लोग हैं, पैदा किए जा रहे हैं, और कोई तरबियत करने वाला नहीं है, ना ही कोई किसी का मूड भी है। मैं आगे पीछे वीडियोस बना लेता हूँ, उस पर भी गालियाँ खाता हूँ आगे से कि जी आप बुराइयाँ करते हो, तो बड़ा ठीक है भाई। खैर चलें, एंजॉय करें। और जी नेक्स्ट वन, नॉट स्पेंडिंग टाइम विद पेरेंट्स। हेलो जुनेद भाई, आई एम अ बिग फैन ऑफ यू एंड आई हैव बीन लिसनिंग टू मोस्ट ऑफ योर पॉडकास्ट and the Q&A series. It's great that it's available on Google Podcast and I can listen to it while driving or riding my motorbike. इसमें एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि it's like even though mashallah the viewership and the listenership of this show is huge, however ज़्यादातर लोग इसको सुनते हैं Google Podcast, Spotify, Apple Podcast वगैरह वगैरह. Now, so there's this subscription, it's called Libsyn. उससे होता है क्या है, आप एक जगह अपलोड करते हो और वो आपके वेरियस अकाउंट्स में एक साथ पोस्ट कर देती है। हाउएवर स्पॉटिफाई हो गया, गूगल और एप्पल का तो मुझे नहीं पता उनका मोनेटाइजेशन क्या है। स्पॉटिफाई का है कि 4000 डाउनलोड्स होंगी तो उसके बाद पहला सेंट आपका बनेगा, एंड इट नेवर हैपन्स। तो अ लॉट ऑफ जो लीकेज है वो इन ऑडियो चैनल्स के ज़रिए हो जाती है। अगेन आई एम नॉट कंप्लेनिंग, द आइडिया इज़ फॉर पीपल टू लर्न फ्रॉम इट। हाउएवर ये एक ज़रा दिल को धचका लगता है हर महीने कि यार like the graph is great but like the inflow is not so great, but it's okay. That's where Patreon comes in. Alright, I can listen to it while driving or riding my motorbike. Usually there are a lot of sex related questions and it's good to know about different problems that people face after marriage. नहीं, a lot तो नहीं होते, equal balance ही होता है, हर किस्म के सवाल होते हैं. Anyways, I wanted to ask you something other than the usual questions you get.
I'm about to turn 28 in June and I'm working as an assistant manager at an MNC. Earning good, doing my masters, and living a peaceful single life. However, one thing bothers me is that I know that Alhamdulillah I have both my parents and that I need to spend time with them, but somehow I end up not talking to them. I'm mostly out with my friends or busy with work. Whenever I sit with them, there's talk of me not being really settled in terms of finances or even career wise. The Brown family dilemma. I always get infuriated and ask them बस यही बातें होती हैं क्या and go out of the house or lock myself in the room. I know that they care and want me to be successful and settle in soon, but it's getting a bit hard now and I'm feeling a distance from them, although I want them to be close and want to spend more time with them. I'm the only son they have and we have a very humble lower middle class background. I want to get some tips from you. If you were in this situation, what would you do? How would you calm your parents, or what approach would you have adopted? Looking forward hearing from you. Apologies for the long email. It's not a long email. देखो यार, there are lots of things in life that you can get back. Like if you have money and you lose everything, you can still make it back. But parents is one thing that you can never have. और मैं बारहा लोगों को यही कहता हूँ कि लाइक यार बड़ों की एक तो दुआएं लेनी चाहिए. अगेन हर किसी के पेरेंट्स एक जैसे नहीं होते. आई अंडरस्टैंड. हमारे पास बहुत सारी ईमेल्स आती हैं वे पेरेंट्स आर द विलन लिटरली इन द स्टोरीज. नो डिनाइंग. बट if they're not making you miserably unhappy, तो ये छोटा मोटा तो आई मीन आई अंडरस्टैंड. उनके भी अपने कंसर्न्स होते हैं. बच्चे उनकी ट्रॉफी होते हैं यार. उनको ज़रा एक सेटल्ड लाइफ दिखानी होती है कि देखें हमारा बच्चा है, हमने उसको पढ़ाया लिखाया, MNC में जॉब कर रहा है और अब देखें इसकी शादी भी हो गई, लड़की गोरी भी है, डॉक्टर भी है, और ये देखो पहले साल बच्चा. ये इनके ड्रीम्स होते हैं यार. अब क्या करें? तो अगर तो आपकी प्रायोरिटी नहीं है ये ड्रीम्स, तो उनसे बात करें कि यार अभी फ़िलहाल ये नहीं है. हाउएवर इन बातों की वजह से एक तो ज़रा अपने गुस्से पे कंट्रोल रखें. दूसरा ये कि कतला ताल्लुकी ना करें. ज़िंदगी बहुत अजीब है भाई. आज ही एक साहब थे, उनको मैं, उन्होंने किसी ज़माने में मुझे ऐड किया था. मेरी उनसे कभी बात नहीं हुई और उनको देख के लगता था दिल के अच्छे आदमी थे. माशाल्लाह पैसे वाले थे, अच्छे कारोबारी आदमी थे और अच्छा लिखते थे. आज उनकी डेथ हो गई और मैं उनकी तस्वीरें देख रहा था. वो हार्डली 55 के भी नहीं होंगे. हर चीज़ अच्छी, बट लाइक क्लियरली वो एक ऐसी बीमारी में मुब्तला थे. मैं नहीं ज़्यादा डिटेल्स में जाता कि वो सर्वाइव नहीं कर पाए. ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है भाई. और आजकल तो ऐसी ऐसी बीमारियाँ आ रही हैं. अब तो मंकी पॉक्स भी चल रहा है पाकिस्तान में. तो यू नेवर नो. तो फिर ना ये फिर ज़िंदगी भर मलाल रह जाता है कि यार आई विश आई हैड स्पेंड मोर टाइम विद देम. बिकॉज एट द एंड ऑफ योर लाइफ व्हेन यू आर ऑन योर डेथ बेड यू विल नेवर से कि आई विश आई हैड वर्क मोर. आप यही सोचोगे आई विश आई हैड मच फुलर रिलेशनशिप्स. तो ट्राई टू रीज़न विद देम. और इन चीज़ों को, यार कुछ चीज़ें होती हैं वो पैकेज के साथ आती है. हर चीज़ तो ना हर बंदा 100% नहीं होता. आप क्या 100% होगे? नहीं होगे ना. आप में भी होंगी कुछ चीज़ें. सो उन चीज़ों को इग्नोर करें और जो बाकी चीज़ें उनको अप्रिशिएट करें. उनकी प्रेजेंस अप्रिशिएट करें. उनकी दुआएं हैं जहाँ आप आज ज़िंदगी में जहाँ तक पहुँचे हो. तो एंड स्पेंड मोर टाइम. बिकॉज ज़िंदगी अगेन लिमिटेड होती है सबकी. फिर कल को आप ज़िंदगी भर का ये मलाल रह जाता है फिर कि यार आई विश मैंने और कुछ किया होता उनके लिए. और फिर वो ऐसी चीज़ें, ये चीज़ आपको अंदर से खाती है और फिर इसका कोई हल भी नहीं होता और इट विल ईट यू अलाइव. सो डोंट डू दैट. और कमरे में बंद ना करें अपने आप को. स्पेंड मोर टाइम विद देम. टेक देम आउट समवेयर. घर के माहौल से बाहर ले जाएं. अब देखें अगर आप उनको एक अच्छी जगह, फॉर एग्जांपल माशाल्लाह यू अर्न वेल, एक अच्छी जगह डिनर पे लेके जाएंगे तो वो ये तो नहीं बोलेंगे ना कि भाई तुम शादी क्यों नहीं कर लेते. वो फिर वहाँ पे डिस्कस करेंगे, हाँ इंटीरियर अच्छा है, यहाँ पे कटलरी अच्छी है, खाना मज़े का था, डरा यू नो. टॉपिक्स चेंज हो जाएंगे. जब एक ही मॉल रहेगा टॉपिक भी एक ही रहेगा. तो बाहर लेके जाएं, कोशिश करें उनके साथ टाइम स्पेंड करें, क्योंकि वो आज हैं कल हो ना हो फिर वो बड़ा होता है. वही मैं अक्सर एक बात मेंशन की है, वो मैंने एक पढ़ी थी. इट वाज वेरी हार्ट ब्रेकिंग. इट सेड रिकॉर्ड योर पेरेंट्स लाफ्टर. ये बात तो है बड़ी दुख वाली.
छोटी सी लाइन है लेकिन बहुत वज़नी है। तो आप भाई उनसे, आपके कोई ना कोई दोस्त होंगे, आपके कॉलीग्स होंगे, ऐसे भी होंगे जिनके पेरेंट्स नहीं होंगे, तो उनसे भी ज़रा पूछें हाउ डू दे फील। अल्हम्दुलिल्लाह माय पेरेंट्स आर अलाइव। मैं इस दुख से नहीं गुजरा तो मैं इसमें ज़्यादा कह नहीं सकता, बट लाइक आई कैन इमेजिन कि इफ़ दे आर नॉट अराउंड हाउ वुड आई फील। तो पेरेंट्स यार बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होते हैं, तो ख्याल रखो उनका और अपना भी। ये कोई ठीक है यार, उनकी भी कुछ उम्मीदें होती हैं, उनको सोए करो, हर चीज़ एब्जॉर्ब नहीं करनी होती और हर चीज़ को इतना सीरियस नहीं लेना होता। वेल लेफ्ट करना सीखो बातों को, बोले हाँ ठीक है इंशाल्लाह करते हैं, अल्लाह के हुक्म से हो जाएंगे सेटल। बट गुस्सा ना करें, पेरेंट्स हैं यार, उनका बड़ा हक होता है आपके ऊपर और बड़ी मेहनत की होती है पेरेंट्स ने। जिस दिन आप पेरेंट बनेंगे ना आपको पता चलेगा रातों को जागना क्या होता है। मेरी रूटीन आजकल आउट हुई हुई है बिकॉज लिल इज़ हेयर। तो वो फिर जब दूध के लिए उठता है रात को 3:30 बजे 4 बजे, उसका एक होता है वेकअप टाइम, वो फिर जब अलार्म बजता है ना वो वाला करना पड़ता है भाई। तो बड़ी कुर्बानियाँ होती हैं यार, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको तो याद भी नहीं होंगी उन्होंने क्या क्या किया होगा आपके लिए, बट बहुत मेहनत होती है। सारे पेरेंट्स बुरे नहीं होते भाई, पेरेंट्स बड़े अच्छे भी होते हैं, ख्याल रखो उनका, ठीक है, ऐसे ना करो कि भाई। और जी नेक्स्ट वन इज़ योर नो जॉब्स व्लॉग। वो जो मैंने व्लॉग बनाया था ना जिसमें लोगों की मैंने दिखाया था ईमेल राइटिंग किस तरह थी, उसके बारे में। Dear Junaid, I recently came across your vlog No Jobs in Pakistan and I wanted to take a moment to express my appreciation for your insights. As a Pakistani businessman based in New Jersey, I understand the challenges of recruiting and managing teams in Pakistan. After 25 years of business growth in the US, I decided to invest in Faisalabad and open an office there. However, I soon realized that finding the right talent is not as easy as it seems. Our HR team in the US received over 1,200 resumes for various job positions in Pakistan, but we were disappointed to find that many candidates lacked the basic skills of our hiring standards. Lacked the basic skills required to explain their experience and qualifications effectively. This has been a significant challenge for us as it delays the recruitment process and affects our hiring standards. Rightfully so. मुझे जो लोग चाहिए थे, I was only 3 में से I was only able to find 1 person 400 emails में से, और ऐसा ही है, क्या करें। Your vlog echoed our concerns about the lack of basic communication, including the ability to write a simple and effective email, which is a critical for success in any job. Moreover, the recruitment infrastructure in Pakistan is not as well established and reliable as it is in the US. The industry is relatively fragmented, which makes it challenging to identify the right recruitment agencies or headhunters to partner with. The low levels of transparency and accountability also contribute to a higher rate of candidate dropouts, further delaying the hiring process. I wanted to thank you for bringing attention to these issues and providing guidance to job seekers. Your vlog highlighted the exact definition of what we are facing as an employer in Pakistan. Your insights have been invaluable and I hope to see more of your work in the future. Finally, I would like to extend an invitation to you to join me for dinner or lunch if you ever visit the US. It would be an honor to meet you in person and discuss more about challenges and opportunities of doing business in Pakistan and the US. Thank you for your contribution. Sincerely, ABC. Thank you so much. जैसे कि आप में से अगर सब ने नहीं देखी वीडियो, तो मैंने जॉब पोस्टिंग्स की थी और मैं अक्सर करता रहता हूँ लिंक्डइन पे, डिस्पाइट द वे आवर इकोनॉमी इज़ और डिस्पाइट द फैक्ट कि 2 दिन से मुल्क बंद है। अभी बीच में जो 2 सवालों के बीच में हम हर सवाल के बाद कट करते हैं एंड देन लाइक देयर इज़ ऑलवेज समवन कमिंग इन। तो पता चला आज हम जो वीडियो अपलोड करना चाह रहे थे वो अपलोडिंग ही बैन हुई हुई है पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे पेज से 2 दिन से कोई कल हमने नहीं डाली क्योंकि हालात जिस तरह के थे, कुछ भी डालते गालियाँ पड़ती कि मुल्क में ये हो रहा है तुम ये डाल रहे हो। 1 दिन का गैप दे दिया, आज देखा रिलेटिवली चीज़ें बेहतर थी, अपलोड की, वो आ रहा है कि जी कैन नॉट बी पब्लिश्ड। तो अब यहाँ तक तो कंट्रोल है भाई आपका फेसबुक और यूट्यूब स्टेट के हाथ में, तो अब कब तक चलेगा भाई ये। मैं कहता हूँ भाई बनाएं चाइना, शौक़ से बनाएं इस मुल्क को, मगर पहले चाइना वाली तरक्की तो दे दें, चाइना वाली ट्रेनें दे दें, चाइना वाली बुलेट ट्रेन हो गई, चाइना वाला इंफ्रास्ट्रक्चर, चाइना जैसी इंडस्ट्री दे दें, फिर भले कंट्रोल करें हमें, वीबो की तरह एक ऐप बना दें, सारा देख लें हमारा, करें मॉनिटर हमें, खल्ली वल्ली वो तो अभी भी करते हैं, मगर दें तो सही। खैर
तो हाँ, वो अपडेट नहीं हो पा रही। तो वो 3 मैंने जॉब पोस्टिंग्स डाली थी और आई गॉट लाइक 400 ईमेल, और कोई भी मुझे इतनी नहीं लगी कि जो कुछ को मैंने फ्लैग ज़रूर किया, बट वेर इन डिस्कशन बिकॉज आई वांट नो मोर। मेरी कोशिश होती है यार इंटरव्यू पे बहुत बिल्कुल जब मुझे लगे ना कि हाँ कुछ हो सकता है तभी बुलाया जाए, क्योंकि आई अंडरस्टैंड यार लोगों का 1000-1500 का खर्चा हो जाता है अगर कोई गुलशन से आ रहा है, तो ये बड़ा मसला होता है। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग आई लाइक टू शेयर, काफ़ी लोग, मैंने जब इफ्तार रमज़ान में इफ्तार में हमारी टीम गई थी, सो अ लॉट ऑफ पीपल हैड पॉइंटेड आउट कि भाई आपकी टीम में एक भी लड़की नहीं और 26 लड़के खड़े हुए थे। तो मैंने बहुत से लोगों ने इसको शेम दिलाने की मुझे की, तो मैं सबको लिंक भेज देता था कि भाई ये वीडियो इस पे मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ कि ख़वातीन को हायर करना एक बहुत बड़ा इशू है। खैर उसके बाद इत्तेफाक से वैसे ही, बिकॉज वी वर हायरिंग एग्रेसिवली, सो वी हायर 2 पीपल। ठीक है, एक गुलशन से आती हैं, एक नॉर्थ से आती हैं। तो जो नॉर्थ से आती हैं उनको मैंने बोला चले जी 2 दिन आप वर्क फ्रॉम होम कर लें, ठीक है। तो ये है। अब जो गुलशन से आती हैं वो हार्डली 3 हफ्ते आई, उसके बाद चीज़ लाइक आई कैन नॉट कंटिन्यू बिकॉज उनका जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है 70% तो वही ले जाता है। अब देखें सैलरी मैं ज़ाहिर है कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा दूँ, लेकिन एक हर रोल की एक सैलरी ब्रैकेट होता है ना, आप 2-2 लाख रुपए तो नहीं पकड़ा सकते ना वो काम जो 70,000 का 80,000 का, यू गेट इट। अब ज़ाहिर है आधे से ज़्यादा उनका सैलरी उसमें जा रही थी, तो उन्होंने फिर माजरत कर ली। तो मैंने भी बोला ठीक है, और फिर मैंने उनको ये था कि मतलब कि कहीं मुझे बुरा ना लगे, मतलब बुरे की बात ही नहीं, मैं तो उस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। सच अ ग्रेट टैलेंट। मगर अच्छा कुछ लोग कहते हैं जी वर्क फ्रॉम होम करा लें। वर्क फ्रॉम होम कुछ पोजीशंस वर्क फ्रॉम होम नहीं हो सकती, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैंने रील बनवानी है क्लोथिंग ब्रांड की, तो भाई वो इधर ही आके बनेगी ना। अब कपड़े किसी के घर जाएंगे और फिर वेयर एंड टेयर होगा, कितना सामान घर जाएगा, फिर वापस आएगा फोटोग्राफी होके, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। या मैं अपने कैमरामैन को बोलूँ भाई वर्क फ्रॉम होम कर, कैसे हो सकता है। लाइट वाला साउंड वाला इधर ही होगा ना, कुछ चीज़ें नहीं हो सकती। तो उनको मैंने यही बोला कि भाई ये तो मैं इस पर ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, तो मुझे अंदाज़ा है। तो ये मसले हैं यार, अब क्या करें, तो ये भी देखना पड़ता है। तो आई अंडरस्टैंड लोगों का बड़ा खर्चा होता है, तो मैं बिल्कुल एंड में जितनी कॉरेस्पॉन्डेंस ईमेल पे या व्हाट्सएप पे हो सकती है वो मैं कर लेता हूँ। अगर किसी से सैम्पल बनवाना हो तो मैं कहता हूँ बना के भेज दें, रादर देन आप यहाँ आएँ और फिर मैं आपको टाइम भी तो बचाना होता है ना अपना भी और दूसरे का भी। तो बड़े मसले हैं यार। अब लोग, मैंने जिस दिन वीडियो बनाई कि भाई लोगों ने ईमेल की बॉडी में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, डायरेक्ट सीवी दी हुई है, उसके बाद खाली ईमेल्स 3-4 ही आई मुझे, आई 100-200 और, क्योंकि अब वीडियो बन गई तो ज़्यादा लोगों को पता चला अच्छा जी कोई जॉब ओपनिंग्स हैं, दे वेंट ऑन माई लिंक्डइन कंपनी का, दे फाउंड इट एंड आई गॉट अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस। कुछ फैसलाबाद की थी, गुजरांवाला की थी, अगेन इररिलेवेंट है ये, इन हाउस जॉब है ना। एक लड़की ने अच्छी चीज़ की हुई थी कि उसने एक वीडियो की कटिंग बना के भेजी हुई थी कि दिस इज़ व्हाट आई कैन डू। इससे ना आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस आसान हो जाता है। वैसे तो सब कहते हैं जी मैं अच्छा काम करूँगा या करूँगी, कोई कुछ बना के दे देना, आई अंडरस्टैंड उसमें उनका टाइम लगता है, मगर ये कि आसान हो जाता है कि एक आपको मिल जाता है, रेफरेंस पॉइंट मिल जाता है कि अच्छा ये कर सकती है। तो उनको फिर मैंने 2-3 एग्जांपल्स दिए कि इफ़ यू कैन मेक दीज थिंग्स लेट मी नो, तो फिर शी इज़ वर्किंग ऑन इट। तो ये है, बड़ा मसला है यार। बेसिक चीज़ों की गाइडेंस दी है। अब मैं ये सोचता हूँ यार मैंने इस कॉम को क्या क्या सिखाना है यार। अगेन मैं कोई आलिम फाजिल नहीं हूँ, मैं भी कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बस थोड़ी बहुत इधर उधर की ऑब्जर्वेशन हैं वो मैं आपसे शेयर करता रहता हूँ। तो अब किस लेवल पे जाके कोचिंग क्लासें देनी पड़ेंगी, मैं तो सोच रहा हूँ फिर कोई मैं हैं मोहित साहब, मैं सोच रहा हूँ कि यार कोई कोचिंग खोल लेता हूँ 500 रुपये की जूम क्लास। ठीक है, अब जो लोग करा रहे हैं कोर्स, अमेज़ॉन करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं, वो तो बहुत आगे की चीज़ है। पहले मैं करा लेता हूँ भाई ईमेल कैसे लिखनी है, ठीक है, 500-500 रुपये का करा लेता हूँ। फिर उस चैनल, उससे फिर हम एजुकेशन चैनल फंड कर लेंगे। एजुकेशन चैनल पे वेयर -1.4 मिलियन इन एक्सपेंसेस। तो अभी तो उस पर और होना है, ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो शुरू ही हुआ है। तो उसको है भाई मूवीज़, उसको फिर वहाँ से फ़ंड कर लेते हैं। या मैं फिर वो होता ना
हैव चाय विद मी। अब इस मसला ये है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी का इतना इशू है ना। फॉर एग्जांपल बहुत से लोग होते हैं मिलना चाहते हैं, बहुत से लोग ऑफ़र भी करते हैं हम आपको इतने पैसे देंगे आप हमसे मिल लें। वो अच्छा नहीं लगता यार कि मतलब क्या मैं अपने रेट लगवाऊँ। बट हाँ, इफ़ इट्स फॉर अ कॉज, जैसे फॉर एग्जांपल अक्सर चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन में ये जो होते हैं क्रिकेटर्स अक्सर कर रहे होते हैं, बैट ऑक्शन कर दिया, पैड ऑक्शन कर दिया, हेलमेट कर दिया, तो बहुत से लोग फिर उनका डिनर भी बाय करते हैं, यू नो, हैव डिनर विद शोएब मलिक एंड सानिया मिर्ज़ा। बाहर के मुल्कों में यही होता है। तो हम यहाँ कर सकते हैं, लाइक अ लॉट ऑफ पीपल आर लाइक कि हम आपका स्टूडियो विजिट करना चाहते हैं, हम बाहर से हैं, हम आपसे मिलना है, तो हाँ भाई दिस इज़ द प्राइस, आ जाएं, विजिट कर लें, 1 घंटा बैठें, चाय वाय पिएँ, गपशप मारें, केक रस खा लेते हैं यहाँ पे चाय में डुबो के। बट यार हर किसी को आप दिखा नहीं सकते ना, कोई आ जाए जी हाँ 10,000 दे के यहाँ पहुँच जाए, अच्छा जी कैमरा है, लाइटें, ओके चलो भाई शपाटर लौंडे आ जाएँ। सिक्योरिटी के बड़े मसले हैं यार। तो देखिए जस्ट बिकॉज सिक्योरिटी नहीं होती ना, आपकी कितनी इकोनॉमिक्स चल ही नहीं रही होती, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होती। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक बड़ी अच्छी जगह पे मैं अपार्टमेंट में मूव होना चाह रहा था, ताकि कि आसगंजी स्वैग मुझ में ना रात में एनर्जी बहुत आती है। अभी देखें 9:30 बज रहे हैं, बेचारे यहाँ बैठे हैं, बाहर हालात अब तो खैर आज सही हैं। इस टाइम मैं फुल एनर्जी होता हूँ, इस टाइम मेरी मीटिंग्स हो चुकी होती हैं, मेरे क्लाइंट से बातचीत हो चुकी होती है, सब घर पे होते हैं, तो मेरे पास एनर्जी होती है। तो मैं चाह रहा था जहाँ भी मैं रहता हूँ ना वहाँ ज़रा लाइटिंग का इशू है ना, बहुत सारे और चीज़ें हैं, पीछे फिर शादी हॉल भी है, उसकी भी आवाज़ें आती हैं, तो मैं कहीं मूव होना चाह रहा था। वो थोड़े से एक्सपेंसिव फ्लैट से, लेकिन मैंने बोला, मैंने अपनी कैलकुलेशन की, इतनी वीडियोस बनाऊंगा तो चलो रेंट वेंट यहाँ से कर लूँगा वगैरह वगैरह, ठीक है। अब उसमें मसला ये था, चूँकि रेंट ज़्यादा था, ख़रीदने वाला तो कोई सीन नहीं है भाई, वो तो 7-8 करोड़ के तो फ्लैट मिलते हैं। तो अब मैं ये सोच के नहीं लिया कि यार मैं अक्सर जून जुलाई में नहीं होता, मैं अपनी फैमिली के साथ होता हूँ या मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, और साल के अगर सारे ट्रैवल जोड़े तो 3-3.5 महीने तो मैं होता ही नहीं पाकिस्तान में, राइट। तो उस टाइम का किराया का क्या करूँ। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, एंड आई टोल्ड यू इन माई प्रीवियस एपिसोड एज वेल, माई गुड फ्रेंड मंसूर भाई वॉज हेयर फ्रॉम दुबई, तो अपना घर एयरबीएनबी पे चढ़ा के आए हुए थे, वैल्यूएबल्स उन्होंने साइड पे की, सेफ में डाली, एयरबीएनबी पे चढ़ाया। अब वो यहाँ बैठे बच्चों के साथ वेकेशन मना रहे हैं, उधर डॉलर कमा रहा है। वाई? बिकॉज दुबई इज सेफ। ज़्यादा से ज़्यादा क्या लेके जाएगा, अगर लेके भी जाएगा पासपोर्ट कॉपी कह रहा हूँ, पासपोर्ट कॉपी है, दुबई में बैन हो जाएगा, फाइल पकड़ जाएगी, नो बडी रिस्क। तो जस्ट बिकॉज वो शहर सिक्योर है, कितनी नई चीज़ें, इकोनॉमिक्स कितनी डेवलप हो जाती हैं, राइट। उनको अपना टिकट फ्री का पड़ गया, क्योंकि पीछे से जो एयरबीएनबी पे चढ़ गया, ग्रीन्स में रहते हैं माशाल्लाह, वो अच्छी जगह है, और वहाँ से JBR करीब है, मरीना करीब है, अच्छी लोकेलिटी है, नीचे रेस्टोरेंट्स हैं, सुपरमार्केट है, और क्या चाहिए आपको एक ट्रैवलर को, और क्या चाहिए, और सामने मेट्रो है, राइट। अच्छे रेट्स पे चढ़ा के यहाँ के एंजॉय भी कर लिए, पैसे भी कमा लिए। बट वो चीज़ मैं यहाँ नहीं कर सकता था कि मैं अगर यहाँ रह रहा हूँ और मैं इसको एयरबीएनबी पे चढ़ाऊँ, और कोई आके किसी अपनी कोई एयरबीएनबी ले ले, गर्लफ्रेंड को ले आए, गर्लफ्रेंड का कंसेंट ना हो, या उसको ड्रग कर दे या कुछ भी कर ले, वो जाके जी पुलिस में रिपोर्ट कर दे, पुलिस मुझे बुला ले थाने में कि जी आपके घर में ही हुआ है। अब मैं उसको प्रूव भी करूं कि भाई ये FIA के स्टैंप लगी हुई है, मैं तो इस तारीख को मुल्क में ही नहीं था, मगर अब आप कोर्ट कचहरी भुगतोगे। तो चूँकि ये फिनोमिना है, या फिर कोई ड्रग करके छलांग मार ले बैल्कनी से, क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग है, अक्सर केसेस होते हैं, कुछ केस दबा दिए जाते हैं, तो फिर पुलिस बुला लेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी। तो बिकॉज यहाँ सेफ्टी सिक्योरिटी के इतने मसले हैं, तो बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाती। अब उससे होता क्या, देखिए अगर मैं उस घर में शिफ्ट होता, अकेला होता, बिकॉज माई पेरेंट्स आर हैप्पी वेयर दे आर, बिकॉज माई सिस्टर लिव्स क्लोज, मैं पता नहीं क्यों बता रहा हूँ घर की चीज़ें, तो मैं अगर वहाँ रहता तो मैं 1 या 2 रिसोर्स ज़रूर हायर करता, क्योंकि मुझे खाना नहीं बनाना आता, तो खाने के लिए अलग होता, सफाई सुथराई के लिए अलग होता, 2 और लोगों को नौकरी मिलती, बाद में एयरबीएनबी होता, तो एयरबीएनबी में फिर कोई क्लीनिंग कंपनी के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट होता कि भाई हर 1.5 दिन बाद या 2 दिन बाद जाके वहाँ क्लीनिंग कर लो, बेडिंग चेंज कर लो। उनका लगता 6-8 लोगों की नौकरी है, भाई मुझे ऐसा ही है, इकोनॉमिक्स चल पड़ती ना। अब इसको मल्टीप्लाई करो ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, कि पूरे पाकिस्तान में अगर यही हो रहा होता, जो ट्रैवल कर रहा है, घर किराए पे चढ़ा रहा है, कितनी इकोनॉमिक्स हैपन हो रही होती। इट्स नॉट हैपनिंग बिकॉज सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इसलिए नहीं हो पाती। खैर बात कहाँ से कहाँ निकल गई, तो मैं फिर यही सोच रहा था भाई मोहित साहब कि हाँ सेफ्टी वाली बात थी ना, कि लोग भाई मिलना चाहते हैं तो भाई मिल लें, कॉफ़ी पी लें, और ये एजुकेशन चैनल का फंड है, इसमें पैसे डाल दें।
बट यार नहीं करते हम। अब आप सोचें, अब आप ये सोचें, मैं दुनिया भर में मीटअप करता हूँ, मैंने आज तक कराची में मीटअप नहीं किया है। मोहित साहब, आपने कभी सोची ये बात? मैंने आज तक कराची में मीटअप नहीं किया। स्टैंड अप तो खैर उस लाइक प्री फेम तो मैंने बहुत किए हैं। नहीं, हाँ मेरा दिल करता है, बट लाइक समथिंग और द अदर कीप्स हैपनिंग। मैंने आज तक कराची में मीटअप नहीं किया, क्योंकि यार यू डोंट नो कौन आ रहा है। आपको नहीं पता आपके ऑडियंस में कौन कौन बैठा है, कौन किस एंगल से आ रहा है, कौन किस एंगल से। यार डर लगता है यार, क्या करें। डैलस में कर लिया मैंने मीटअप, लंदन में किया मैंने मीटअप, दुबई में किया, और यहाँ नहीं आज तक किया। हालांकि यहाँ भी फैन से मिलना चाहते हैं, मेरी भी ख्वाहिश है मैं मिलूँ यार, क्योंकि आई कैन रिलेट मोर टू देम ना। अब अगर मैं पूछूं भाई तुम कहाँ से आए, अच्छा तुम यहाँ से हो, अच्छा तुम क्या करते हो, ये वो करियर ट्रेजेक्ट्री क्या है, ज़िंदगी में क्या बनना है, दिल करता है। हाँ लाइक यू नेवर नो ना यार, मतलब हर किस्म का तो फ्लेवर यहाँ मौजूद है। तो बड़े मसले मसाइल हैं सर। एंड थैंक यू फॉर द ऑफ़र। इंशाल्लाह। आपने कहा न्यू जर्सी लिखा है, हाँ न्यू जर्सी से मैं गुजरा था सिर्फ while I was driving from New York to DC. What a wonderful pleasurable drive. रास्ते से पिज़्ज़ा हट खाया था। और इंशाल्लाह आई विल टेक योर ऑफर एंड आई हैव नोटेड डाउन योर नंबर। इंशाल्लाह इफ आई एम देयर आई विल डेफिनेटली रिंग यू अप। बट थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर एग्रीइंग। और बाय द वे ये वीडियो लिंक्डइन पे भी काफ़ी वायरल हुई थी, काफ़ी लोगों ने शेयर की थी, काफ़ी रिक्रूटर्स ने शेयर की थी, और काफ़ी बिजनेस ओनर्स ने शेयर की थी कि ये बहुत बड़ा मसला है, काम के लोग नहीं मिलते। सोचे 24 करोड़ अवाम है, इतनी अवाम है कि घर भी बैठी हुई और आधी अवाम बाहर सड़कों पर जला भी रही है, मगर वो किसी काम की नहीं है। मैं यही कहता हूँ, अरे क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए। एक बंदा 100 पे भारी हो, ऐसा मुसलमान चाहिए। यहाँ आपने 100 भर दिए जो कोई किसी के काम की नहीं है, कोई स्किल नहीं है, एक ईमेल तक तो लिखने नहीं आती। आज ही मैंने अपनी स्टोरी पे शेयर की, एक साहब ने उर्दू में ईमेल लिखी थी, कोई मसला नहीं। देखें मुझे अंग्रेज़ थोड़ी पाल लें, मुझे काम के लोग चाहिए। चाहे अगर किसी को खुदा ना खास्ता बोलना भी ना आता हो, एज लॉन्ग एज दे कैन एडिट, एज लॉन्ग एज दे कैन डू ग्राफिक डिज़ाइनिंग, थंबनेल बना सकता है मेरा, या क्लोथिंग की फ़ोटोग्राफी कर सकता है, कोई ज़बान बोले या भले ना ही बोल सकता हो, उसकी कोई कैद नहीं है। मगर उस बंदे ने पूरी ईमेल सब्जेक्ट पे लिखी हुई थी और बॉडी खाली थी। अब यार इस लेवल पे जाके सिखाना पड़ेगा लोगों को, तो भाई फिर इसका कोई एहतमाम करते हैं मोहित साहब, कोई फ़ी स्ट्रक्चर बनाते हैं और सिखाते हैं भाई ये स्ट्रक्चरिंग होती है, ईमेल होती है, सब्जेक्ट ये होता है। क्योंकि मुझे नहीं पता यार इनकी यूनिवर्सिटीज़ क्या कर रही हैं या इनके स्कूल क्या कर रहे हैं। हाँ, मैं बहुत अरसे से एक इवेंट कराना चाह रहा हूँ। देखो वो जो आई थी ना लॉरियल की सना, मैं जो तला भाई है ना, उनके पीछे कब से पड़ा था, जब वो सनोफी में थे, फिर उससे पहले फाइज़र में थे, कि भाई अपनी कंपनी की कोई एचआर का बड़ा या बड़ी जो है ना डायरेक्टर लेवल वो भेजें, ताकि लोगों को वो बताएं कि भाई ये इश्यूज़ हैं आपके रिज्यूमे में, आप सैलरी नेगोशिएट नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे। मैं कब से ये करना चाह रहा हूँ। देन आई ऑल्सो थॉट कि इवेंट करता हूँ, और इवेंट में एक मॉक इंटरव्यूज़ करते हैं और एक आवाम बैठी हुई है, ताकि वो सीखें उससे कि भाई ये इस तरह होता है। यार प्लान्स बहुत होते हैं यार, बट अब यहाँ मसला ये है ना, आप देखो भाई इवेंट अगर करना है, अगर किसी होटल में करना है या किसी मार्की में करना है, 8-10 लाख रुपए का खर्चा है यार। ठीक है, सैंडविच तो रखोगे ना, पानी तो रखोगे ना, चाय तो पिलाओगे ना उनको, ठीक है, फिर उनसे आप चार्ज तो करोगे नहीं, ज़ाहिर है बेचारे हर तबके से लोग आएंगे। अब कोई बच्चा, जैसे वो लांडी वाला बच्चा था जो 180 रुपये लगा के वहाँ सैलानी के दफ्तर आता था, अब मैं उससे तो नहीं लूँगा ना 500 रुपये, 1000 रुपये, अच्छा तो नहीं लगेगा ना। तो कौन इसको कवर करेगा यार। इरादे बहुत हैं, प्लान्स बहुत हैं। मैंने तो ये भी सोचा था कि एक पूरी गूगल शीट हो और हमारा एक नेटवर्क हो पूरे पाकिस्तान में, हर शहर में ऑडिटोरियम्स का, और जो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी, चाहे वो अमेरिका से आ रहा है, जो छुट्टियों पे आ रहा है अपने शहर, देहात, गांव, कहीं भी, वो उस शीट पे फिल कर दे भाई मैं आ रहा हूँ और मैं इस पे बात करना चाहूँगा, और लोगों को नोटिफिकेशन चली जाए कि भाई 23 मई को फ़लाने साहब मुल्तान आ रहे हैं, इस ऑडिटोरियम में वो टॉक देंगे, और वो जो हैं लेट से सिलिकॉन वैली से उनका ताल्लुक़ है, और वो बात करेंगे क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, दुनिया कहाँ है, वो आपसे बात करेंगे। अब वो नोटेबल फेसेस नहीं होंगे, या शफीका इकबाल आ रही हैं गूगल वॉरसो से और वो लाहौर में यहाँ टॉक देंगी, वो ऐसे माशाल्लाह वो कर रही होती हैं बहुत। सो दैट्स द आइडिया। बट यार वही वाली बात है, यहाँ ट्रस्ट लेवल का बड़ा इशू है।
पता चला कोई टिकट लगा के बेच रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, कोई मिसकमिटमेंट कर रहा है, दिस एंड दैट। तो यहाँ जितने कम से कम लोगों से ताल्लुक़ रखो ना, मैं उतना ही प्रेफर करता हूँ। जितने आप लोग इन्वॉल्व करोगे, जब अच्छा काम करने की कोशिश की टांग ही खींचते हैं लोग, वो दिल नहीं करता। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं यार, इतने लोग फॉलो करते हैं यार, मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, इतने लोग मुझे अमेरिका में मिले, वो यही उनको जब मैंने आईडी दिया उन्होंने बोला हाँ वे डाउन। एक साहब थे, कहाँ के थे वो, डी सा नाम है कंपनी का, डेल नहीं, यार कोई टेक कंपनी है, मैं भूल रहा हूँ। तो वो कह रहे थे हाँ ठीक है, आई एम डाउन। एनईडी के थे वो ग्रेजुएट। इतने लोग हैं यार, दिस सो वांट टू गिव बैक, मगर यार आई डोंट नो, मैं बस घबराता हूँ। खैर चले भाई, ये थी आज की एपिसोड। आई होप आपने काफ़ी कुछ सीखा हो। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, एंड यू कैन सपोर्ट दिस चैनल ऑन patreon.com/ganjiswag। आपसे मिलेंगे अगली एपिसोड पे। खुदा हाफिज़।